जय हिंद, जय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जय नर्मदे और जय महाकाल. Before I start a welcome note, I just wrote a few lines in your honor, sir. आपके स्वागत में कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उनसे ही मैं स्वागत प्रारंभ करना चाहूंगा कि मोहन जी सिंहस्थ राज्य के. Very soon the Kumbh Mela in Ujjain is going to be announced, the Singhast, that is called Singhast. मोहन जी सिंहस्थ राज्य के प्रबल प्रशासक प्रहरी हैं. मोहन जी सिंहस्थ राज्य के प्रबल प्रशासक प्रहरी हैं विनम्र कर्मठ नेता हैं और जनमानस के प्रेमी हैं विनम्र कर्मठ नेता हैं, जनमानस के प्रेमी हैं. भारत को जो हृदय संभारे, भारत, द एमपी, द मध्य प्रदेश इज इवन बीइंग कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडिया. सो आई एक्सप्रेस माय इमोशंस ओवर हियर दैट भारत का जो हृदय संभारे आज दुबई के मध्य पधारे. व्यापारी उद्योग जगत के हे क्रांतिवीर हम साथ तुम्हारे, हे क्रांतिवीर हम साथ तुम्हारे. शब्द नहीं यह वचन हमारे, महादेव साहित्य पुकारे, महादेव साहित्य पुकारे. द एस्टीम्ड गेस्ट टुडे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑनरेबल श्री मोहन यादव जी, योर एक्सेलेंसी सतीश चौहान जी, मिस्टर राघवेंद्र कुमार सिंह IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन MSME गवर्नमेंट ऑफ MP, Mr. Shiv-Shekhar Shukla, IAS, sir, Mr. Sanjay Dubey, the guest of honor, Shri Basu Sharaf Sahab, my dear diaspora friend here, and very categorically, Mr. Jitendra Vaidya. A fabulous program was organized yesterday. The Indian Business and Professional Councils, the governing board, the conveners, the distinguished guests, respected members of entire Indian business and professional community over here, ladies and gentlemen, good evening. And a warm welcome to this distinguished gathering in the vibrant city of Dubai. It is with immense pride and profound honor that I stand before you today on behalf of the Indian Business and Professional Council Dubai to extend our heartiest greetings to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Sir, your presence here is a testament to the strengthening bonds between Madhya Pradesh and the United Arab Emirates, as well the dynamic Indian business community in Dubai. आपकी यह दुबई की यात्रा एक ऐसी संधि का निर्धारण कर रही है जो केवल मध्य में नहीं है अपितु हृदय में है. निश्चित ही I will like to take another 1 minute to introduce the Indian Business and Professional Council, the IBPC Dubai, which has completed 22 years, established in 2003 as a premier platform to promote trade, investments and professional collaboration between India and the UAE. Today, your good initiatives to unlock the opportunities for foreign investments and the NRIs is underscoring the growing synergy between Madhya Pradesh, a powerhouse of opportunities in India, and the UAE, a global hub for trade and innovations. Throughout the program today, we are going to mark the tourism, the industrial development, और घोषणाओं की तो मानो बौछारें हो रही हैं. सावन का महीना शुरू हो गया है. आज सावन का पहला सोमवार है और महादेव के पुजारी प्रहरी मोहन जी, जिनके बारे में कृष्ण भी हैं और देव भी हैं, ऐसे मोहन जी का हम भूरिश अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. Thank you, Dr. Chaturvedi, for setting the tone for today's discussions with such a thoughtful welcome. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's our honor to hear from a leader who continues to support and connect the Indian business community in the UAE.
with the new avenues for growth and cooperation. Please welcome Mr. Satish Kumar Sivan, Consul General of India in Dubai, to deliver the inaugural address. Sir. Thank you very much. Honorable Chief Minister, sir, it is a profound honor for all of us to welcome the very dynamic delegation from Madhya Pradesh led by the inspiring Honorable CM. We have Shri Sanjay Dubey, the Additional Chief Secretary, Shri Shiv Shekhar Shukla, the Principal Secretary in charge of Tourism, Shri Raghavendra Singh, Principal Secretary in charge of Industry, Shri Sudambi Khade, Commissioner, Shri Chandramouli Shukla, the Managing Director of MPIDC, Shri Ilayaraja, Secretary to the CM. A very dynamic, inspired team with whom the consulate has had the privilege to work over the past 15 days to 3 weeks to put together this program, a program which has inspired a lot of reception and confidence and hope for the Indian community in Dubai to look at Madhya Pradesh as a possible investment destination. I think this visit is in line with the overall vibrancy and momentum that we have been witnessing in the UAE-India comprehensive strategic partnership. As all of the distinguished guests here are aware of, India and UAE share a profound and enduring relationship, one that is deeply rooted in prosperous trade and vibrant cultural exchange. This historical bond has evolved today into a dynamic, modern partnership, becoming one of the most consequential bilateral partnerships in the world today. For decades prior to the formation of UAE as a modern nation state, maybe even for centuries, Indian traders were instrumental in establishing key trade routes via the Gulf and especially Dubai. The foundation laid by these early interactions continues to shape the partnership that we see today. And we have one role model who's sitting with us on the stage, whose relationship with Dubai precedes India's partnership with UAE as a nation state. And we have to acknowledge and thank people like Sri Vashu Sharaf for their contribution in building this relationship. In the modern day, the UAE, with its strategic location at the crossroads of Asia, Europe and Africa, continues to serve as a key global trade hub. A defining moment in the modern era of our bilateral relationship came in 2015, when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji made a landmark visit to the UAE, the first by an Indian Prime Minister in 34 years. This visit marked the beginning of a new era of high-level engagement between our two countries, driven by a shared vision for growth and prosperity. You all know that since then the frequency and depth of the exchanges have only intensified, and the two leaders have met over multiple times. Just in the past 24 months, Honorable Prime Minister visited UAE thrice, while the President of UAE visited India twice. These high-level interactions underscore the mutual trust and alignment of vision between the leadership of our two nations, as a result of which the Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, was signed in February 2022, which has become a catalyst for unprecedented trade and investment flows. Bilateral trade has, as a result, surged from $73 billion to over $100 billion in just 3 years. Just between April 2000 and March 2025, UAE's FDI into India reached nearly $23 billion. CEPA is not just about numbers. It is about a shared vision for a dynamic, interconnected, and innovation-driven future. It is also a framework enabling investment, institutional partnerships, and strategic cooperation across sectors. Indian MSMEs, for one, can benefit immensely
through this wide network of over 25 SEPA agreements that UAE has concluded as on date. A stellar example of this vision is the Bharat Mart, a dedicated platform for Indian MSMEs being launched in Jebel Ali Port's Jafsa zone in 2026. It will empower Indian enterprises to reach Gulf, Middle East and beyond, leveraging UAE's, especially Dubai's world-class logistics infrastructure. To aid in this trade integration, our financial systems are also becoming deeply intertwined. The local currency settlement system, formalized through a MOU between Reserve Bank of India and the UAE Central Bank, now enables rupee dirham trade across sectors, delivering full benefits of this huge trade volume entirely to our two economies. UAE's J1 card, built on the RuPay stack, and the integration of India's UPI and UAE's ANI platform is a further leap, simplifying digital cross-border payments and enhancing convenience for businesses, tourists, and the Indian diaspora. When we talk of food security, we all are aware this region is heavily reliant on food imports, creating opportunities for agricultural technology and food security solutions. We are today collaborating on establishing a food park with an investment of over $2 billion, which will be a major boost in the goal of achieving food security here in this country. Undoubtedly, with its reputation as the new granary of India, Madhya Pradesh stands to benefit a lot in this aspect. The UAE's target of generating 14 gigawatts of renewable energy by 2030 and achieving net zero by 2050 aligns with India's own energy transition roadmap of net zero by 2070 and installing 500 gigawatts of renewable energy infrastructure by 2030. This creates vast opportunities in green hydrogen, battery storage, and renewable infrastructure. Technological collaborations in harnessing AI, smart infrastructure, and machine learning are transforming digital trade and logistics. The strong startup ecosystem developing in Madhya Pradesh can look to exploit the strengths of Dubai as a technological and financial hub. Connectivity and tourism are key sectors of growth. The UAE is a vital air transit hub for India with nearly 1,200 weekly flights connecting about 25 destinations in India. This robust connectivity facilitates tourism, trade, and people-to-people exchanges. However, we all are aware that we still do not have direct flight connectivity between Bhopal and Dubai or Indore and Dubai. I see this trip of Honorable Chief Minister and his delegation leading a new pathway for that. Thousands of UAE residents, both Emiratis and expatriates, visit India annually with growing interest in spiritual retreats, wellness, wildlife safaris, and cultural experiences. I see a lot of potential for Madhya Pradesh, especially in this sector. Dubai's global reputation in building tourism infrastructure, innovation, and hospitality makes it a natural partner for Madhya Pradesh. Dubai-based developers, investors, and hospitality chains can explore joint ventures and PPPs in tourism projects and also skill-building tie-ups in hospitality and tourism services. In short, I personally see that businesses from Madhya Pradesh, which has excellent capacities in food, textiles, green energy, startup, wellness, and tourism, can look to exploit the avenues available in the UAE-India economic corridor. I hope this visit of Honorable CM and his delegation will open a new chapter in India-UAE relations, one that will truly enrich the heart of India and UAE alike. Thank you. Have a good day. Thank you, Mr. Sivan, for your insightful words and for always championing India's vision across borders.
Ladies and gentlemen, there is a short video that will be shown across, and may I now call upon Mr. Raghvendra Kumar Singh, IAS Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotions and MSME, Government of Madhya Pradesh. There is a short video followed by a presentation. Mr. Raghvendra ji. If you seek a land where infinite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by world heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. वंदे मातरम। सबसे पहले मैं दुबई यूएई में आके कहना चाहता हूँ कि इस विश्व प्रसिद्ध शहर में आके हमें बड़ी खुशी हुई है। ये शहर को अगर हम लोग सिटी ऑफ फ्यूचर कहें, एक ग्लोबल ट्रेड हब कहें तो गलती नहीं होगी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आसन, मंच पर विराजमान श्री सतीश कुमार सिवंत दुबई में कौंसल जनरल हैं, श्री वासु श्राफ जी, श्री नरेश भवनानी जी, डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, श्री संजय दुबे सर, श्री शिवशेखर शुक्ला सर, बोली शुक्ला जी, और उससे बड़ी इस सभा को शोभायमान कर रहे स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख उद्यमी हस्तियां, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे अभी बैठे बैठे मोबाइल से दुबई का इतिहास देख रहा था। उस इतिहास में 19वीं शताब्दी से ही देखा, उसके पहले तो बहुत पुराने पे कहाँ जाएंगे, लेकिन मछली पकड़ने वाले छोटा सा एक गांव, उस गांव में 19वीं शताब्दी से इतिहास चालू होता है। बाद में
1950 से आसपास थोड़ा सा विकास का रास्ता आता है, लेकिन जैसा वासु भैया भी बता रहे थे कि 50 से 70 के बीच में तेल की उपलब्धता आई, थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऊंट गधे और बाकी की सवारियां आम बात थी। और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहाँ तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहाँ तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद से। कोई धन की, नीचे की, सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है। ये आज बदलते दौर का यहाँ का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है। 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की, विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है। ये बदलते दौर का भारत है जिसमें सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के साथ जो उदारता का भाव अरब के इस एक तरह से इसको ऐसा ही देखा जा सकता है कि जैसे थोड़ा हमारे अतीत के काल के उस पृष्ठ को पलट के देखें कि ये भारत की विशेषता थी कि भारत और भारत से जुड़े लोग जहाँ भी जाते हैं, मैंने कल भी कहा था कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए। सुनाम धन्य कैसे कैसे नाम यहाँ है, और अंदर की उत्कंठा कैसी है, वो उत्कंठा भी वही बता रही है जैसे वासु भैया बता रहे हैं कि जब आए तो गधे और ऊंट की सवारी थी और आज कहाँ बदल गया, ये मेट्रो से लेके बुलेट और क्या क्या सारे यातायात के संसाधन बदलते दिख रहे हैं। तो वो मेरे से कह रहे कि यहाँ से आप जाओगे तो क्या लेके जाओगे? हमने आपका दिल ले जाएंगे। इतना बढ़िया आदमी मिला कि हमारे लिए आज तक उस प्रेम को बांटने वाला आदमी भी तो मिलेगा है। धन दौलत वैभव तो दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन मन का प्रेम भी तो चाहिए, और ये मन का प्रेम एक दूसरे को संपर्क से जोड़ता है, एक दूसरे के आनंद को बांटता है। दुनिया बहुत छोटी है और ये डिजिटल में तो और छोटी हो गई। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी तो हिलना डुलना कुछ नहीं करता दिख रहा है। दरवाजे के सारे खिड़की दरवाजे कमरे के सब बंद है और मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए का आवागमन कर रहा है बैठे बैठे, वो हिल भी नहीं रहा है। उसकी अपनी मन की भाव भंगिमा और हाथ में छोटा सा मोबाइल, सारा हिसाब जमाने का वो अपने मोबाइल से निकाल के कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और अब तो बदलते दौर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि इस बॉर्डर पे सैनिक भी नहीं अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बॉर्डर पे सब अपने अपने जगह बैठे हैं। और ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहाँ से कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहाँ युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज़ बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इसको कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो
और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने ये दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। ये संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आया। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो बासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों, आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उन्होंने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहाँ एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से इतना बड़ा रास्ता खोला। जैसे मकान भला कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है। वो दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहाँ से खोला? दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई, और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहाँ से अफ्रीका तक और दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज़्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो। दुबई का मॉडल चल रहा है, और इसी आधार पर अब आप ही सब बता रहे हो कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूँगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको, और आपने सब समझ लिया, मैं मान के चलता हूँ। अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मजा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हूं, सबसे आनंद कब आता है? कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा मजा है इसका भी, कभी याद आपको दिलाता हूं। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है, और त्योहार खाने को देता है। तो जितने भी पर्व होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता कि नहीं, ईद पे भी मजे आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा, तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही है, और कहाँ ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहां से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है,
और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया, मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहाँ आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों मसू भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज़्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहाँ तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, 47 का देश आज़ाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर 14 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला है। जब आप यहाँ आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर, बाकी राज्यों पे भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूँ, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता दिया कि कितने सारे विमान खरीदने की बात कर दी। बताओ आप, तो मैं आंकड़े ही नहीं भूल रही हूँ। एक एक विमान कितने कितने का है। देखो इतने पैसे वाले के पैसे के विमान लाना यार, अपने क्या मतलब, फालतू पंचायत। ये देखो अब याद आया। तो ये है परमात्मा की दया। थोड़े पैसे हो तो एक एक चीज याद रखते हो। इतने हो जाए कि भूल ही जाओ। और ये आप नहीं, जब भारत का अच्छा समय था, जब अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ समय पहले तक ही राजा महाराजा भी सेठ साहूकार से ही पैसे लेने आते थे, तो भारत के अंदर पैसे को देने के लिए गिनने का सिस्टम नहीं था। और उसका कारण क्या था, आज आप समझ सकते हो। यहाँ पे तोल के दे देते थे, क्योंकि वो पैसे हमेशा सोने और चांदी में ही होते थे, तो गिनने से अच्छा तोलना सरल रहता था। तो तराजू पे तोल लो और दे दो, कहाँ चक्कर में पड़े। अब आज का समय ऐसा बदल गया, तो बदले हुए समय को ज्वेलरीज में बदलते हुए दुबई ने रास्ता दिखा दिया नहीं, वापस कस्टम फ्री करते हुए। ये जो आज का समय कैसा आया कि आज पूरे परिदृश्य में जैसे युद्ध के 3 अलग अलग दौर से निकली है दुनिया, 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में। पहले हार जीत का, व्यापार का सारा सिस्टम 47 या बल्कि 71 के पहले। आज भारत की इकोनॉमी की तरफ से देखने में भारत ने भी कितनी गौर से, आपके सबके साथ अधिकांश लोगों के संबंध अगर जुड़े हुए हैं भारत से, तो आप ध्यान देना। 1947 में देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने में उस समय का भी $1 और $1 बराबर थे। आजकल आप चैट जीपीटी में देख लेना, कोई अंतर नहीं था। लेकिन उस समय का हमारा 730 टन सोना ग्रेट ब्रिटेन के स्टेट बैंक में जमा था।
अपना सोना वहाँ जमा था, और वो सोना जमा मोदी जी आए तब तक भी बाकी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन केवल 100 टन ही भारत में आ पाया। बीच में तो मौका आया था जो हमने तो अपने लिए विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया तो कर्जे दे के सोने को गिरवे होते देखा है। लेकिन आज बदलते दौर में न केवल इकोनॉमी बदली, बाकी बड़े पैमाने पर हमारा रिजर्व सोना जो यहाँ रखा हुआ था 60 से 70% उठा के अपने देश में ले गए। ये वो अपनी भारत की अपनी ताकत बता रहा है कि कोई कारण से, किसी भी कारण से किसी देश से संबंध 19 से 20 से हो तो हमारा माल तो हमारे घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये व्यापारी से अच्छा कौन समझेगा। यही तो हमारे लिए बदलते दौर का आज भारत की ताकत है। हर वो चीज जिसके कारण से भारत की अपनी साख बढ़ सकती, वो सारे प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश की ओर से हमारे सभी सेक्टर में आपका स्वागत है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई इंडस्ट्री के अलग अलग सब प्रकार के, या आप वर्तमान के दौर में जिस भी क्षेत्र में आना चाहें। ये जो पॉलिसी बता रहे हैं वो आपने सबने सुन लिया अधिकारियों की। इन पॉलिसियों के अलावा भी आपको कुछ लाभ चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपके बीच में आया हूं। उससे बाहर जाकर भी हमको मालूम है जिन जिन देशों ने उन्नति की है, वो सिंगापुर हो या दुबई हो, इसी प्रकार से बैठ के तो व्यापार करते थे। आप बताओ आपको क्या चाहिए। पहले ये सुनते थे तो हमको अचंभा लगता था कि ऐसा कोई होता है क्या। सरकार की पॉलिसियां तो वो लिखी रहती, वही करना पड़ती। लेकिन ये ध्यान में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये जो सरकार की कैबिनेट कमेटी होती है, वो कैबिनेट कमेटी ये पूरी सक्षम होती है, लेकिन ये सक्षम होने के लिए रास्ता दिखाने वाले 56 इंच के सीने वाले बैठे ना दिल्ली में, उनको ही मालूम है कि हाँ ये होता है। क्योंकि व्यापार की समझ बढ़ाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, और खास करके अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर की जो वर्तमान की सरप्लस जो स्थिति है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर गेहूं अच्छा है, सरबती है, उनको सही दाम दिलाना है, तो सही दाम दिलाना तो केवल मुझे सरकार चलाते हुए केवल मंडी की तरफ देख करके मध्य प्रदेश से बाहर नहीं आऊंगा तो मैं अन्याय करने वाला हूं। क्योंकि वो उनकी सही दाम दिलाने के लिए जहां जहां मार्केट की गुंजाइश होगी उस मंडी तक मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं वहां के नागरिकों के साथ भी भला करूंगा और आपको भी योग्य दाम पर अच्छे से अच्छा माल दिलाऊंगा, ताकि ये दोनों का परस्पर व्यापार का कायदा एक तरफ नहीं, एक तरफ कुशल श्रमिकों की अच्छी संभावना मध्य प्रदेश में है, तो उन अच्छे लोगों को अच्छे काम की, उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम उन्होंने किया है तो जहां मार्केट है वहां तक लोग पहुंचाना ही नहीं। मुझे मालूम है नरेश जी के बारे में और वासु भैया के समय आपने बड़ी कठिनाई में आए थे। मुझे नहीं मालूम कि कोई आईआईटी या कोई इस प्रकार से करके गए। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं भी मान के चलता हूँ, लेकिन ये जिंदगी के अनुभव से आईआईटी आईआईएम से भी कई गुना ज़्यादा आपकी डिग्री अनुभव की डिग्री है, जिससे हम में से आगे लोग बढ़े। ये जो अपनी अंदर की क्षमता है, जो योग्यता है, ये और कहीं नहीं मिलती है। भारतीय माता बहनों के किचन में हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, घी, उसका जो मसाले का जो आनंद है वो कहाँ से कहाँ पहुँचाता हमको मालूम है। वो मसाले की महक गोविंदा में आज मैंने आनंद लिया है आपके माध्यम से। आज वही कार्यक्रम हुआ था टेक्सटाइल हब में, कितना अच्छा लगा वाकई में कि ये जो आपने शुरुआत की थी शायद वो टेक्सटाइल सिटी, क्या बोलते, टेक्समास है ना। आपने, मैं जब देख रहा था गौर से तो मेरे को उसमें जो भी प्लानर होगा उस प्लानर की बुद्धिमत्ता व्यापार को बढ़ाने की भी दिखी, क्योंकि वो सरकारी अगर आधार पे होता तो मैं मान के चलता कि सबके ऊपर आरसीसी की छत डलवा देते। उसकी हाइट ऐसी नहीं रखते कि आपने फोल्डिंग चद्दर के ऊपर शेड बना हुआ, नीचे 1, 2, 3 फ्लोर, आपको चाहिए जितना कर लो, ऐसे ही है ना भैया। आगे का हमारा शोरूम, पीछे का गोडाउन, और गाड़ी घोड़े निकालना, और आग वाग लग जाए तो सब दूर छोटे छोटे रोड निकाल करके बढ़िया शानदार बना दिए। और इतनी अच्छी प्लानिंग बहुत तरीके से आपने की, यहाँ के लिए भी समसामयिक है, और ये मॉडल हम वहाँ भी ले जा सकते हैं। वासु भाई आपने क्या नहीं, यहाँ से जरूर ले जाना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मॉडल उतार दें। ऐसी कई सारी चीज़ें सीखने लायक है।
लेकिन आज तो आपने सबने दिल से इतनी देर तक सुना। ये लगता है कि व्यापारियों को इतनी देर तक भाषण सुनना ये भी बड़ी परीक्षा का काम है, मामूली बात नहीं है। लेकिन व्यापारी वो जो आखिरी तक देखे और फिर निर्णय करके करना क्या है, तिल्ली में तेल कितना है वो देखने का तो मजा, ये तो व्यापार के सच्चा कायदा है। तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के साथ जब हम अपने विभागों की अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं, आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से दरवाज़ा खुले रखने का आग्रह करते हुए आइए मध्य प्रदेश सरकार के साथ जुड़िए, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी कुशलता, अपने तमाम प्रकार की संभावनाओं पे हम और आप लंबे समय तक साथ चलेंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सीधी तस्वीरें दुबई से देख रहे थे आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से संवाद करने के लिए, साथ ही साथ बिजनेस फोरम में शामिल होने के लिए दुबई में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां मुख्यमंत्री कई सेशंस में शामिल हुए और निवेशकों से भी संवाद किया है। मुख्यमंत्री की ओर से फ्रेंड्स ऑफ एमपी कम्युनिटी और साथ ही साथ भारतीय समुदाय से भी संवाद किया गया। जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी दुबई से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दुबई के अंदर मध्य प्रदेश का नक्शा और मध्य प्रदेश की जो छायाकृति है वह भेंट कर मुख्यमंत्री को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री के साथ आप कई पदाधिकारी और उद्योगपतियों को देख सकते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से संवाद किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री से संवाद किया गया है। Ladies and gentlemen, as we draw towards the conclusion of this insightful session, may I now invite Mr. Sudan Khade, Commissioner Jan Sampark, for the vote of thanks.